Good morning, friends. Today we are again going to study another important poem from 12th class, that is in the syllabus of 12th CBSE and 12th RBSE. And the name of the poem is Aunt Jennifer's Tiger. Friends, this is a very significant poem, very important poem. As we studied in the last class, My Mother at 66 by Kamla Das. Kamla Das was again a feminist poet, and Adrienne Rich, she is again a feminist poet. What is a feminist poet? I just explained it in the last class of Kamla Das in the poem My Mother at 66. But now let me explain the term feminist once again. The meaning of the feminist means a poet who writes for the upliftment of women is called feminist. In fact, Adrienne Rich is not only a usual feminist poet, but in fact, she is a radical feminist poet. Now, think. Firstly, we just have a bio sketch and the life sketch of Adrienne Rich. In fact, she is an American poet. Sylvia Plath was again American poet, the confessional poet. We are having very important feminine poets, and we are having the American poets at the other hand. Firstly, we must have some important names of the American poets. Who are the American poets? These questions are mostly asked in every sort of competitive examinations in English. Firstly, Walt Whitman. He is the key American poet. Then we have Robert Frost. After it, we are having Edgar Allan Poe. Then we are having W.B. Yeats. Then we are having, as an American poet, Emily Dickinson, Sylvia Plath, and we are having Emerson. So these are some important Wallace Stevens. These are some important American poets, and we saw some of the female poets in the class of Kamla Das when we studied My Mother at 66. Let me just have a recap once again in brief. Who are the key women poet? Because today we are going to study again female poet, and that is Adrienne Rich. So, who are the female poets? Ellen Showalter, we are having Sylvia Plath, we are having Sappho, we are having Kamla Das, Toru Dutt, we are having Charlotte Bronte, we are having Annie Bronte, we are having Emily Bronte, George Eliot, Jane Austen. So these are some important female poets. Emily Dickinson. So Emily Dickinson is a female poet, and she is again American poet. Likewise, our today's poem, Aunt Jennifer's Tiger, is a very important poem. These two poems, My Mother at 66, actually that is a memoir. Memoir is a genre when a poet just composes any poem in appreciation of any person or in remembrance of any person, that is called memoir. But here, this is not memoir. Aunt Jennifer's Tiger is only for the upliftment of women. Women are just passing through the a number of problems in the society. And in fact, I just described that even in 18th century in England, there was a great problem for women poets. In fact, Mary Evans could have the masculine name George Eliot. Then she could just get her own poems published. Otherwise, she was not getting
she was not successful in getting her own poem published at the time, because of the fact that she was a female poet. So, in fact, when a writer or a poet writes for the upliftment of the women, okay, that is called feminist poet. Okay, Adrienne Rich is an American. She is a radical feminist poet, and in fact, she was born in the year 1929, and she died in the year 2012. In fact, she was a poet, non-fiction writer. She was an important essayist, and in fact, her popularly known poem is "Diving into the Wreck." Diving. In this title, Diving into the Wreck, this is an important poem by Adrienne Rich that today we are going to study in Aunt Jennifer's Tiger. So, diving into the wreck, here, diving, look at the word of diving. Diving is here a conceit that we call extended metaphor. And diving means a struggle. I'm just defining this word. I'm mentioning this poem by Adrienne Rich. This is the another poem that is not included in 12th class here. Because in 12th class we are going to study only Aunt Jennifer's Tiger. This is the poem by Adrienne Rich. But I'm talking about the another poem by Adrienne Rich. And the poem is Diving into the Wreck. And I'm just explaining the meaning of diving in order to have a background about the thoughts and the ideology of Aunt Jennifer's Tiger's poem there. Okay, so we can have the Adrienne's philosophy in Aunt Jennifer's Tiger by this terminology. Diving into the wreck is her another poem, and the meaning of diving is here. What is the meaning? Struggle for having or for establishing the equality in the field of economics, in the field of politics, and in the field of social. When a poet talks, or a poet or any activist works for the upliftment of the women in all these spheres, he or she does have so much struggle. So, struggle in having or establishing the equality in women, that is the meaning of diving in this poem. Diving means struggle for having equality in the rights of the women there. So, you can understand by this explanation that a person is having a struggle, too much struggle. Even the activists like Arundhati Roy, they do have so much struggle in the society. They have had the struggle politically, and they have had the struggle socially. They have had the struggle emotionally. From every point of view, they have had so much struggle when they work for the upliftment of the women there. So, Adrienne Rich is another radical activist here. And in fact, this poem, Aunt Jennifer's Tiger, is Adrienne's the very first poem. The first poem by the poet Adrienne Rich is Aunt Jennifer's Tiger, and this poem was published in 1951. Okay, and this poem was included in an anthology, A Change of World. Okay, what was the name of the collection of books by Adrienne Rich? What was the name? The name was A Change of World. ये पोएम जो थी आपकी आंट जेनिफर्स टाइगर एक एंथोलॉजी काव्य संग्रह में छपी थी. उस एंथोलॉजी का नाम है ए चेंज ऑफ वर्ल्ड. आंट जेनिफर्स टाइगर इज द वेरी फर्स्ट पोएम बाय Adrienne Rich. So, and in fact, she is having another popularly known poems like, you can say Blood, Bread and Poetry, and you may have another Snapshot of a Daughter-in-Law. These are some other poems by Adrienne Rich. But here today, we are going to have a detailed study in brief, in short time there.
So we would have a little sojourn today, and in fact, I would like to just concise all the matter, all the informations here in a nutshell here. So yes, we can start now. The first important information is Adrienne Rich is American poet. Number two, she is radical feminist. Number three, important information that she is an activist, in fact. And in fact, and the another important information is that she worked a lot and she had too much at the background of Vietnam War there. And in fact, now look at the genre of the poem. What kind of genre does it have? So this poem, Aunt Jennifer's Tiger, is a lyric, in fact, in the form of dialogues. Okay, it is a lyric, and what is the tone of the poem? The tone of the poem is it is happy and hilarious in the beginning, but in the concluding stanza, the poem becomes what kind of? It becomes pathetic. It becomes melancholic. What is the meaning of melancholy? Melancholy means when the sadness becomes endless. In two words, we can define melancholy. There's that endless sadness is called melancholy. In concluding stanza, it becomes pathetic and melancholic. But in the beginning, this poem is having the tone of happy and cheerfulness there. Okay, so there is happiness and cheerfulness, there is a delight, and all is goody goody in the opening stanza, but in the concluding, in the last stanza, the tone contrasts with the first stanza there, and the tone becomes pathetic, sorrowful, and melancholic in the concluding stanza. In fact, we must see what is the theme of the poem. The theme of the poem is, it is having, in fact, theme is having 3 points. Okay, number one, identity. Aunt Jennifer wants to trace her own identity. She is in search of her own identity. So, identity, sexuality means gender issue. Okay, male issue, female issue, that is sexuality. And number third is politically. In this poem, we are not having any touch of politics, but in fact, in this poem, we are having the theme in 2 points. There is an identity issue for Aunt Jennifer, and there is an issue of sexuality, of gender, female gender's rights and equality here in male chauvinistic society there. So we are having male domineering society. In fact, male dominating society, this is not good term. Okay, male domineering, well, the male are dominating in a right way, it is male dominating society. And when the male society is dominating in a wrong way, it is male domineering society. Therefore, we must not say male dominating society, we must say male domineering society. Means male candidates are not superior enough even though they are domineering the female society. And this is called male gaze. Okay, another term for it is male gaze. And we may have another important term for this that we call toxic masculinity. Okay, so I will just discuss these all terms when I'll take the lecture of RPSC first grade poem My Last Duchess, that we also study in BA third year in University of Kota. My Last Duchess by Robert Browning. But here we return on this poem Aunt Jennifer's Tiger by Adrienne Rich. So what is the genre? This is a lyric. What is the theme? Sexuality and identity. And what is the style? The style of the poem is that structural style, I mean. So it is a free verse in the form of dialogue. So it is a free verse, and in fact it is a lyric, and most of the lines are run on enjambment,
And in fact, now we can see the term that is applicable for this poem, and that is the key term, that it is a symbolic poem. There are lots of symbols. Who is the symbolic poet? William Butler Yeats, W.B. Yeats. He used so many symbols in his poems there, like tower, like swans, like rose. These are important symbols in the poetry of W.B. Yeats. Here in the poem on Jennifer's Tiger, we are having a number of symbols, and in the form of metaphors, in the form of irony, in the form of epithets. So we would have here the symbols in abundance, okay, in a great number there. So it is a symbolic poem, and there are lots of epithets and metaphors in this poem. We may have personification, we may have irony, we may have simile, we may have alliterations, we may have pathos, element of pathos, we may have the figure of speech contrast, we may have comparison, we may have so many terms that are applicable both for flora and fauna in this poem. There is a term zoomorphism in this poem. When animals are discussed, the poem is called in such a way. In fact, I'll discuss these all terms a little later in Jonathan Swift, when I will have a lecture on the book, on the satire, the Battle of the Books. Okay, but here we concentrate on this poem and Jennifer's Tiger. And Jennifer's Tiger, in fact, is having the meter. What kind of meter does it have? It does have an iambic pentameter. And Jennifer's Tiger is having iambic pentameter. What is a meter? A meter consists of two syllables. Okay? Two syllables make a hype, and it makes 1 meter. So pentameter means 10 syllables. Okay? And iambic means when unstressed syllable is followed by the stressed syllable, it is called iambic. So there is an iambic meter in this poem, and in the form of pentameter. Okay, the 5 iambic meters here with 10 syllables, free verse style, and the theme is sexuality and identity, and it is having the happy tone in the beginning, but in the concluding tone stanza it becomes pathetic and melancholic, and it is having a genre like lyric. It is a lyric poem, and in fact what we call here quatrain. I was talking about the structure of the poem there. Actually, it is a 12-line poem. Okay, so there are three sets of three quatrains. Three quatrains. Quatrain means 4-line set. In each quatrain, there are 2 couplets. Couplets means 2 lines. Okay, so 2 couplets means 4 lines. 4 lines means 1 quatrain. So there are 3 quatrains. It means 4 3 ja 12-line poem. So it is a 12-line poem. It is a lyric on the theme of sexuality and identity. It is in free verse style, that is called verse libre or mukt chand in Hindi, in French verse libre, and in Urdu azad ghazal. So English term is free verse. There is no meter system there. There is run-on enjambment style in most of the poems, most of the lines there. So this is all about the analysis and the poetry appreciation of this poem. And now let me write down some important pieces of information on the screen. Then I would directly come on the text of the poem. Yes, here. Adrienne Rich she is an American poet. Okay, what kind of poet? American poet. Now, she is a radical feminist.
poet. Number 2. Number 1, she is an American poet. Number 2, she is a radical feminist poet. Number 3, you know what is the genre? Genre. Genre, it is a lyric poem. Lyric poem in dialogues. Number 4, important information, it is a free verse or verse libre. Verse libre is a French term and free verse is an English term. Number 5, most of the meter is iambic pentameter. Number 6, important information, most of the lines are run on enjambment. And synchronized. Some of the lines are synchronized also. And number 7, the first poem, Aunt Jennifer's Tigers, is the first poem by Rich, Adrian Rich. So it is the first poem by Adrian Rich that was published in 1951. Okay, and the another important piece of information is that it was published in an anthology, A Change of World. This was the name of anthology. एंथोलॉजी बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पोएम, एक बुक होती है उसमें छपी थी ए चेंज ऑफ वर्ल्ड. ओके, ए चेंज ऑफ वर्ल्ड ये एंथोलॉजी का नाम है और इसमें छपी थी ये वाली पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, जो इनकी पहली पोएम है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स. ओके, एंड इट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड पोएम. What kind of poem? Problem oriented poem. जिस तरह से प्रॉब्लम प्ले होते हैं, it is a problem poem. Henry Ibsen was the founder of problem plays. After it, J.B. Shaw and John Osborne, many other dramatists used the term problem play, and they wrote a number of problems. Death of the Salesman, Arthur Miller, again problem drama. Okay, problem play. So this is a problem play. So these pieces of information are very important. And look here, another rhyme scheme, important point. What is the rhyme scheme of Aunt Jennifer's Tiger? Aunt Jennifer's Tiger is a name of poem. It is not the name of the poet. Name of the poet is Adrian Rich. A B B C C D D E E F F. This is first quatrain. Quatrain means 4-line set. This is second quatrain. This is the first quatrain. This is second quatrain. This is the third quatrain. And in each quatrain, A first couplet, B second couplet, C again third couplet, D fourth couplet, E fifth couplet, and F sixth couplet. Look here, let us discuss the rhyme scheme
here in the first line. Look at the opening line. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. तो आपको राइम स्कीम निकालने के लिए सबसे लास्ट वाला वर्ड पकड़ना होता है. तो पहले तो स्क्रीन को देखो. अब स्क्रीन, स्क्रीन को मैं यहां लिखता हूं हिंदी में. लेट मी राइट डाउन हियर स्क्रीन. अब इसमें स्टार्टिंग के स्क्रीन साउंड से कोई लेना देना नहीं है, क्री से भी. लास्ट का साउंड आता है मेरे पास स्क्रीन, इन. ये इन जो आया है आपका, इसको हम नॉमेनक्लेचर करते हैं. इसको ए आप नाम दे दीजिए. तो पहली लाइन की राइम हुई हमारी ए. अब देखते हैं इसी तरह से ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. इसमें भी लास्ट राइम स्कीम के लिए आपको लाइन का एंड वाला वर्ड, द लास्ट वर्ड पे जाना पड़ेगा, उसका भी लास्ट साउंड पे. ग्रीन में ग्री से कोई मतलब नहीं है. इन, ग्रीन पहले से मैच कर रही है क्या? स्क्रीन, ग्रीन, यस. अगर ग्रीन पहले स्क्रीन से मैच कर रहा है लास्ट साउंड, लास्ट वर्ड का, तो आप इसको भी ए कर देंगे. पहले से मैच कर रही है ऐसे. नहीं करती है इन केस, तो आप इसको बी देंगे नाम. चूंकि ये मैच कर रही है स्क्रीन, इन, ग्रीन, इन, तो इसको भी हम ए नाम दे देंगे. इसका नोमेनक्लेचर भी है. नाउ लुक एट द थर्ड लाइन. लास्ट वर्ड है ट्री. अब वहां तो इन या ट्री, ई. तो ये जो ट्री है इसका ई साउंड इन से मैच नहीं कर रहा है. तो इसको नया नाम देंगे आप. गिव ए न्यू नेम, दैट इज बी. तो इसकी राइम हो गई आपकी बी. नाउ लुक एट द फोर्थ लाइन. वही लास्ट वर्ड देखना है. सर्टेनिटी. टी, सर्टेनिटी किससे मैच कर रही है? ए से मैच कर रही तो ए नाम दे दें. बी से कर रही तो बी, और दोनों से नहीं कर रही तो सी नाम देंगे हम. चूंकि ये स्क्रीन से मैच नहीं कर रही है, ग्रीन, इन से भी नहीं कर रही है. ट्री, सर्टेनिटी, ट्री, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, ट्री, ई का साउंड आ रहा है, तो इसको भी हम बी नाम देंगे. क्योंकि ट्री में भी ई का आ रहा है, ट्री. सर्टेनिटी में भी सर्टेनिटी, दैट इज बी. तो राइम स्कीम इज ए बी बी. अब देखें दूसरे स्टेंजा में. एंड जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल. वूल, ऊल, लास्ट साउंड इज ऊल. ऊल ऐसे मिलता है तो ए कर दें. बी से नहीं मिल रहा है, दोनों से. ये नया साउंड है तो आप इसको सी दे देंगे नाम. ये सी दिया आपने. पुल, वुल. मैंने बताया था आपको ओ प्लस ओ जो है यू की तरह. फुटबॉल में डबल ओ की जगह सिंगल यू भी लिखते हैं फोनेटिकली स्पीकिंग. तो साउंड सेम है ये. वुल, वुल बोलते हैं एक्चुअली. वुल, पुल, तो सेम साउंड है. तो ये भी सी मैच हो गया आपका. सी से मैच कर रहा है. अब थर्ड लाइन में देखें बैंड, एंड. ये ए से भी मैच नहीं कर रहा है, बी से भी नहीं कर रहा है, सी से भी नहीं कर रहा है. नया साउंड आया है, इसको डी नाम दे देंगे आप. ओके. देन फोर्थ लाइन देखें. हैंड, हैंड तो बैंड से मैच कर रहा है डी से, तो इसको डी दे देंगे. नाउ थर्ड स्टेंजा का भी देख लीजिए आप. एक बार राइम स्कीम निकालना सीख लें आप. देखो इसका लास्ट वर्ड है थर्ड लाइन की पहली लाइन का लाई, लाई, लाई. लाई आपका नया साउंड है तो आप इसको ई दे देंगे. लाई. और बाई, बाई ई से मैच कर रहा है तो ई दे देंगे नाम. फिर थर्ड लाइन में मैड, एड. एड कहीं नहीं आया, एंड आया था बैंड, और उसमें तो हैंड में. ये तो एड है, तो नया साउंड है ये, तो इसको एफ दे देंगे. और अनअफ्रेड, अनअफ्रेड मैड से मैच कर रहा है तो इसे एफ कर देंगे. तो देखो राइम स्कीम बनी आपकी. ए, बी, बी, सी, डी, डी, ई, एफ. ये राइम स्कीम हमने निकाली. और हमने क्या बताया आपको? ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, और एफ. अब आगे अगर इसका फोर्थ स्टेंजा होता, फोर्थ क्वेट्रन, तो क्या राइम स्कीम पैटर्न चलता? एफ के बाद में क्या आता है भाई? जी, एच आता फिर. ओके. ये होता है राइम पैटर्न. सो व्हाट इज द राइम ऑफ द पोएम? क्वेश्चन आता है आपके.
आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, और मल्टीपल चॉइस में हमारी टीचिंग ही आपके काम आने वाली है। ये जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड टीचिंग हम करते हैं यहाँ पे, ये पैटर्न पे ही आपको स्टडी करनी पड़ेगी MCQs में। ये पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिटेल्ड स्टडी। MCQs वाले क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। सब्जेक्टिव में तो जो आपको आता है वो आप लिखते हैं, लेकिन MCQs में तो जो एग्जामिनर को आता है वो पूछता है, अब वो अपन को याद है या नहीं है। ओके, तो इसलिए MCQs को आपको बिल्कुल डिटेल्ड टाइप में पढ़ना पड़ेगा। और आपने मेरे लेक्चर अटेंड किए, पूरे भारत से कह रहा हूँ मैं, चाहे केरला में बैठे हुए स्टूडेंट्स हों, चाहे कर्नाटका के स्टूडेंट्स हों 12th क्लास के CBSE RBSC में भी चलती है पोएम, सेम बुक है, चाहे आपके महाराष्ट्र में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे जयपुर में हो, हैदराबाद में हो, हर जगह आपसे मैं कह रहा हूँ, आपने मेरी पोएम्स बहुत डिटेल में पढ़ ली, इनकी नोट मेकिंग कर लीजिए आप, आपका कोई क्वेश्चन स्लिप होने वाला नहीं है। हम हर टॉपिक को बिल्कुल कवर करके पढ़ाते हैं। ओके, एक भी क्वेश्चन आपका स्लिप नहीं होने वाला है होपफुल्ली इन योर CBSE 12th एग्जामिनेशन। बस आप इसको केयरफुल्ली सुने और शेयर करते रहें अपने स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी अच्छा हो एग्ज़ाम। देखिए, अब नाउ कम टू द पॉइंट हियर। अब टेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। यस, लेट मी वाइप आउट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहें तो, इस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं इस तरफ आ जाता हूँ। यस, यू मे टेक स्क्रीनशॉट। यस, नाउ लेट मी वाइप आउट। इसमें एंथोलॉजी का नाम आपको याद रखना है, और इसमें आपको इसकी और पोएम्स जो मैंने बताई हैं आपको, ब्रेड बटर एंड पोएट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A Snapshot of Daughter-in-Law, that is another important poem by Adrian Rich. Now come to the point here. Now text पढ़ते हैं हम। देखो, there are 3 quatrains. 4-line set is called quatrain. So this is the first quatrain. This is the second quatrain. This is the third. First quatrain. It is second quatrain. This is the third quatrain. Look here, 2 lines. 2-line poems is called couplet. 3-line poem is called triplet. 4-line poem is called quatrain. 5-line poem is called limerick. 6-line poem is called sestet. 7-line poem is called heptet, and 8-line poem is called octave. We do have sestet and octave in the sonnets, Petrarchan sonnet especially there, and we do have 3 quatrains and 1 concluding couplet in Shakespearean sonnet. Okay, then 14-line poem is called sonnet. So these are some important things here. So in the first quatrain, look here, now we can start. Adrian Rich, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. In fact, there is a screen, there is a tapestry. टेपेस्ट्री बोलते हैं जो आपका पेपर वर्क होता है दीवार के ऊपर, वॉलपेपर, या आप कह सकते हैं कोई मैटिंग, कोई सजावट की डेकोरेटिव मैटिंग होती है इस तरह से जो टका होता है डेकोरेटिव पीस, उसे बोलते हैं टेपेस्ट्री। देखें, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, हियर लुक एट द वर्ड आंट, there is no specific information about the specific lady, specific aunt. It means aunt is a symbol here. Aunt is representing any general woman, general, or it means ordinary woman. Whether it is an ordinary woman or it is an extraordinary woman, what's the difference? There's no difference, because we have seen in the history Sylvia Plath committed suicide in 1963 because her husband, who was the poet laureate of England,
Ted Hughes tortured his wife Sylvia Plath to the great extent. We already seen Kamala Das. Her poetry is confessional again. She was so much perturbed by the male partners. She had multiple friends there. And her poetry is confessional. We see these all things in The Invitation. Another poem by Kamala Das is Sunshine Cat. The poem is Looking Glass, Dance of Eunuchs. If you see, she was exploited and tortured socially and emotionally. And so many things are there. That is not the issue of discussion today here. So, in fact, Sylvia Plath was tortured by the husband. Kamala Das was tortured. In fact, we see Emily Dickinson, she remained recluse and secluse. So, most of the cultured and scholarly ladies, even who are the poets who are studied at international level, they do have suppression in the male domineering society. From this perspective, we should study this poem again. We studied Kamala Das in the last lecture, My Mother at 66, that was having the flavor of activist, of feminist there for the upliftment of women, that poem was. And this poem is, I think, rather having the greater effect than that Kamala Das did have in the last lecture. When we went through the poem, My Mother at 66, it is having the severe effect. This poem is very, very relevant in the present time. Rather, it was relevant in the past, and I think it is relevant in every era, because we are having male domineering attitude, male chauvinistic attitude everywhere. Aunt is a symbol. What is the figure of speech? Look here. Figure of speech. Aunt. Aunt means any general lady, whether scholarly lady और अनस्कॉलरली लेडी, कोई भी. आंट यहाँ पे एक सामान्य महिला को रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर इट इज ए सिंबल. अदरवाइज वो नेम मेंशन करते हैं यहाँ पे. जेनिफर इज एन इमेजिनरी नेम in order to hide the identity. Imaginary. This question is again very important. अगर आपके क्वेश्चन आता है इसमें 12th में MCQ में कि what is the imaginary name in this, तो आप लिखेंगे जेनिफर. इमेजिनरी. क्यों भाई इमेजिनरी क्यों लिया? कोई स्पेसिफिक लेडी का नाम क्यों नहीं लिया भाई? कोई एक स्पेसिफिक लेडी के साथ टॉर्चर थोड़ी हो रहा है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में. हर घर में टॉर्चर है, हर जगह टॉर्चर है. बहुत बड़ी बड़ी पोइट्स जो हैं वो टॉर्चर्ड हैं, सिल्विया प्लेथ, कमला दास जैसी. और जो है आपके हर जगह रिच, वेदर दे आर द रिच और द पुअर, एवरीवेयर मोस्ट ऑफ द women are tortured in the male dominating society, whether in the domestic sphere or in the at the working place, okay, in corporate, in offices, in schools, in college, where they work there. So they do have the exploitation and torture, suppression everywhere. So aunt is a symbol. Aunt means any ordinary, any common. Jennifer is an imaginary. Aunt Jennifer's tigers. So Aunt Jennifer is a lady. This is a scene of a domestic life. Aunt Jennifer is a married woman, and she is having a painting. She is having an embroidery. In fact, embroidery बोलते हैं कसीदाकारी को. और एक और वर्ड है ब्रोकेड. ब्रोकेड का मतलब होता है जरी का काम, जो स्प्रिंग आती है गोल्डन सिल्वर टाइप की, उस जरी के काम को तो ब्रोकेड बोलते हैं. लिखना चाहें तो आप ब्रोकेड. तो हो सकता है ये ब्रोकेड में हो, पर यहाँ पे तो एम्ब्रॉयडरी का लिखा हुआ है, तो ये तो जरी का काम होता है, जरी का काम. और एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं कसीदाकारी. एम्ब्रॉयडरी मीन्स कसीदाकारी. तो देखें आंट जेनिफर की जो है एक टेपेस्ट्री लगी हुई दीवार पे, एक पेंटिंग लगी हुई है. पेंटिंग मीन्स कसीदाकारी, जो कढ़ाई बोलते हैं ना, कढ़ाई करना, जो एक पहले आता था, एक कुरेशा टाइप का होता था, एक नीडल होती थी एक, और उससे वूल लेके जो बुनते हैं, वीव करते हैं, उस तरह से बुना हुआ एक पीस लगा हुआ है उनकी वॉल की दीवार पर.
ये सिंबल है एक्चुअली उनकी लाइफ किस तरह से रही है, खास करके मैरिड लाइफ, बिकॉज हर हस्बैंड हैड बीन वेरी क्रूएल एंड रुथलेस। बहुत निर्दयी रहे आंटी के हस्बैंड, जिनका नाम मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन करें, हर घर में तो हस्बैंड बहुत क्रूएल, रुथलेस और बिल्कुल जो है रूड होते हैं। देखें आप, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस, प्रेंस नहीं प्रांस बोलेंगे, द प्रोनाउंसिएशन इज प्रांस। प्रांस का मतलब होता है जो टाइगर चलते हैं, टाइगर की जो चाल होती है एकदम से, जो हैविंग द प्राइड, हैविंग द एग्रेशन एंड एरोगेंस, हैविंग द पावर देयर। जो टाइगर अपनी पावर शो करते हुए, अपनी ग्लोरी शो करते हुए, अपना एग्रेशन, एरोगेंस, मैं जंगल का राजा हूँ, इस तरह से जो टाइगर चलता है, उस चाल को, पैस को क्या बोलते हैं, प्रांस। ओके, इसी तरह से हथनी जो फीमेल एलिफेंट होती है, फीमेल एलिफेंट की चाल को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल और सबको वोकेबुलरी जब मैं पढ़ाऊंगा तो कराऊंगा मैं आपको। उसे बोलते हैं गैट। जो एलिफेंट की, फीमेल एलिफेंट की जो चाल होती है बड़ी ग्रेसफुल होती है, उसे बोलते हैं गैट। यहाँ पे टाइगर्स का मामला है। टाइगर्स क्या चल रहे हैं, बड़े अकड़ के चल रहे हैं, बड़े इतरा के, इठला के चल रहे हैं। तो प्रांस का मतलब है, प्रांस मीन्स इतरा के चलना, इठला के चलना, अकड़ के चलना, शान और शौकत से चलना, मजेस्टिकली चलना। ओके, तो आंट जेनिफर्स के टाइगर जो हैं उस एम्ब्रॉयडरी के अंदर वो प्रांस कर रहे हैं, चल रहे हैं अकड़ के, बिल्कुल शान और शौकत के साथ, ग्लोरी के साथ, अक्रॉस ए स्क्रीन। स्क्रीन मैंने बता दिया वो मैटिंग जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रही है, यानी कि कैनवास कह दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीन? द मीनिंग ऑफ द स्क्रीन इज कैनवास। ब्राइट टोपाज, अब पहली लाइन में आप देखिए, द मीनिंग इज कंप्लीटेड विद इन फर्स्ट लाइन, द मीनिंग इज नॉट रनिंग इन टू द सेकेंड लाइन, but there is no full stop at the end of the first line. There is only the terminal pause, the caesura at the end of the first line, and the meaning is completing within itself there. So there is a synchronization. Where there is a synchronization? There is a synchronization at the end of the first line. What two things have been synchronized? The meaning and the pause. लाइन का पॉज भी आ गया है और लाइन के मीनिंग दोनों सिंक्रोनाइज हो गए हैं, इसलिए फर्स्ट लाइन कैन बी कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ लाइन? सिंक्रोनाइज्ड लाइन। तो पहली लाइन को आप लिख सकते हैं, टर्म दे दें। फर्स्ट लाइन किस तरह की इस पोएम की? दिस इज द टर्म सिंक्रोनाइज्ड। The first line is synchronized one. Now look here. Bright topaz. Embroidery की बात हो गई. It is a background for this information that is coming in the second line. Bright topaz, denizens of a world of green. Bright topaz. In fact, topaz is a stone, precious stone there, that is having yellow shade. Okay. So there are in fact टाइगर्स। क्या है वहां पे? वहां पे टाइगर्स हैं जो किस कलर के हैं? ब्राइट टोपाज। टोपाज इज रिप्रेजेंटिंग येलो कलर, येलो स्टोन। टोपाज इज ए स्टोन, प्रेशियस, बहुत कीमती पत्थर होता है टोपाज। जैसे पन्ना होता है आपका एमरल्ड, जैसे रूबी होता है रेड, जैसे आपका डायमंड होता है वाइट, उसी तरह से जो है प्रेशियस स्टोन है टोपाज, येलो कलर का। डायमंड वाइट होता है, रूबी रेड होता है, और डायमंड वाइट है, रूबी रेड है, और एमरल्ड जिसे पन्ना कहते हैं वो ग्रीन होता है, और टोपाज येलो कलर का। ब्राइट, चमचमाता हुआ, ब्राइट, ब्रिलियंस है उसके अंदर। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स। डेनिजन, द मीनिंग ऑफ द डेनिजन इज रेजिडेंट, व्हाट वी कॉल इनहैबिटेंट, निवासी। इनहैबिटेंट बोलते हैं डेनिजन को। द मीनिंग ऑफ डेनिजन इज इनहैबिटेंट। एंड और यू में से रेजिडेंट, हिंदी में आप समझेंगे निवासी।
ब्राइट येलो कलर के निवासी हैं. डेनिजन मीन्स रेजिडेंट ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, there are three words. A world of green. This is again a symbolic phrase. Okay, a world of green represents here forest. There are animals having bright yellow shade. Okay, so when a lifeless object, we use the term shade, and when there is any living being, we use the word complexion, not shade. And when there is an object, lifeless object, that can be lifted and applied on a surface, that is color. Shade cannot be applied on a surface. Shade just emits its own color, and color is that can be that can be just picked up by a brush and finger and can be applied on a surface. So this is the difference between shade. What is shade? What is color? And if there is any living being, we use the term complexion. So what is the complexion of the tiger? World of green. हरे भरे संसार के निवासी थे उस एम्ब्रॉयडरी में. डेनिजन्स मीन्स निवासी, रेजिडेंट, वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे जो किस कलर के थे? ब्राइट टोपास, पीले कलर के. तो थोड़ा सा आइडिया भी यहाँ पे पहली लाइन में टाइगर्स का है उन्होंने. तो ब्राइट टोपास जो है, इनफैक्ट दीज टू वर्ड्स ब्राइट टोपास आर एक्टिंग एज अ मेटाफर कलेक्टिवली for tigers. What kind of tigers? The tigers were bright yellow in complexion. Complexion में टाइगर कैसे थे दिखने में? ब्राइट येलो. तो यहाँ पे ब्राइट येलो आप कहेंगे, यहाँ पे एक यह सेंस डिवाइस है जो मीनिंग बढ़ा रही है, और यह है मेटाफर. What kind of tigers? कैसा कलर था टाइगर का? ब्राइट येलो. तो ब्राइट येलो यहाँ पे जो है एक मेटाफर की तरह यूज हुआ है इसमें, जो कि टाइगर के लिए इस्तेमाल हुआ है. तो यू में राइट डाउन ब्राइट टोपास. आई मीन ब्राइट येलो का मतलब ब्राइट टोपास. ब्राइट टोपास. कमेंट करेंगे आप, क्या है ब्राइट टोपास? विच फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफर used for tigers. Used for the tigers. The tigers were of bright topaz complexion. It means yellow color. A world of green. And these tigers were the denizens, were the residents of a world of green means forest. तो word of green भी क्या है आपका? अब इसने फॉरेस्ट नहीं कह के ए वर्ड ऑफ ग्रीन कह दिया. बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको बताने वाला हूं. यहां पे जब बात आप घुमा फिरा के करें, पिन पॉइंटेडली ना करें. जैसे मैं बोलूं आपको, मैडम योर पॉइंट इज लाइक ए पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री इन और मैथमेटिक्स. Your point is like a point of geometry that is having no height, width and depth. अगर ये मैं किसी से कहूँ तो इसका मतलब है, मैडम your point is senseless. What are you talking about? There is no meaning in your speech. अब आपसे किसी से कहें कि you are talking nonsense. Your speech is all balderdash, utter poppycock and fiddle diddy. All gibble gabble means useless, senseless, fruitless. तो वो नाराज हो जाएंगी मैडम. तो उसे घुमा फिरा के कैसे कहा आपने? मैडम योर पॉइंट इज लाइक ए पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री विदाउट एनी हाइट, डेप्थ एंड विड्थ. तो ये घुमा फिरा के जो बात कर देते हैं, इसको हम जो है ईडियम के रूप में बोलते हैं बीटिंग अबाउट बुश. घुमा फिरा के बात करना. अगर जो है इसको हम फ्रेज के रूप में कहें, फ्रेजल वर्ब में, तो इसे बोलते हैं राउंड अबाउट बात करना, घुमा फिरा के बात करना. अगर इसे हम फैलेसी के हिसाब से डिस्कस करें तो इसे बोलते हैं फैलेसी ऑफ सर्कमलोक्यूशन, इनडायरेक्टली बात करना.
तो यहाँ पे लेकिन फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं लिटरेचर में, तो यहाँ पे जो इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बात कही जाती है, यहाँ पे ए वर्ड ऑफ ग्रीन कहा, उसने फॉरेस्ट नहीं कहा डायरेक्ट, फॉरेस्ट की जगह उसने इनडायरेक्टली यूज किया क्या, ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरा भरा संसार में रहते थे वो, यानी कि फॉरेस्ट में रहते थे। तो ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जो है वो उसका मीनिंग है फॉरेस्ट। ये घुमा फिरा के बात कही है इन्होंने, तो फिगर हो गया यहाँ पे क्या है, इनंडो, लिख लें आप, INNUENDO, इनंडो लिख लीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच, टॉकिंग इनडायरेक्टली यूं लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच ना लिखेंगे तो आप सोचेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मामला है। टॉकिंग इनडायरेक्टली, ये फिगर आपको इनंडो कहां पे देखने को मिल रहा है, इन वर्ड्स में। ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन पे कमेंट कर रहे हैं हम, लिटरेरी कमेंट, अटेम्प्ट ए लिटरेरी कमेंट ऑन दीज 4 वर्ड्स। ए वर्ड ऑफ ग्रीन, ए वर्ड ऑफ ग्रीन घुमा फिरा कर फॉरेस्ट के लिए कहा गया है, इसलिए इसमें एक फिगर है इनंडो। देखें अब आप 3rd लाइन, तो वो हरे भरे संसार जंगल के निवासी थे बेचारे, ब्राइट टोपास टाइगर, और वो एम्ब्रॉयडरी के अंदर बिल्कुल ऐसे दौड़ती हुई पोजीशन में थे, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से ही, ओके, बिल्कुल ग्रेसफुल्ली, एग्रेसिवली, विद एरोगेंस, विद ऑल ग्लोरी, टाइगर्स जिस तरह से होता है, फियरलेस। दे डू नॉट, दे यहां पे प्रोनाउन है जो किसके लिए आया है, टाइगर्स के लिए। दे डू नॉट फियर, टाइगर्स वर फियरलेस, okay, they didn't have any type of fear. The man beneath the tree, although in that embroidery, in that screen on which tigers were embroidered, जहाँ पे टाइगर एम्ब्रॉयडरी की गई थी उनकी, वहाँ पे एक पेड़ भी बना हुआ था, और उस पेड़ के नीचे क्या थे, मैन थे। मैन मतलब हंटर थे, गन्स लेके। इवन दो बिसाइड्स दिस फैक्ट दैट इवन देयर वर मैन अंडर द ट्री इन द एम्ब्रॉयडरी, बट इन दैट पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी those tigers were not fearless in the presence of the men who were hunters। ये टाइगर की फीचर है, ये टाइगर की जो है यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है, टाइगर नेवर फियर्स। ओके, सो वहां पे आदमी थे, बनिथ, बनिथ मतलब अंडर द ट्री, मैन, मैन मीन्स हंटर, दे वर हंटर्स हु माइट हार्म द टाइगर। ओके, लेकिन फिर भी टाइगर कैसा थे, वो जो टाइगर थे, मोर देन 1 टाइगर थे, इसलिए दे आया है यहाँ पे। दे डू नॉट फियर, उनको डर नहीं था उन आदमियों से। दे वर फियरलेस creatures, fearless animals. They means tiger again. They pace means move. They pace in sleek. Sleek, the meaning of sleek is smooth. Okay. Chivalric means brave. Certainty means anyhow, confirmed, surely. They moved smoothly and having all bravery. सब ब्रेवरी थी उनमें, बहादुरी थी, डर नाम की चीज़ नहीं थी उन टाइगर्स के अंदर। निश्चित तौर से जो थे, सर्टेनिटी मीन्स निश्चित तौर से, एनी हाउ कन्फर्म्ड। दे मूड इन ए स्लिक मीन्स स्मूथली, शिवेलरिक मीन्स ब्रेव कैरेक्टर, सर्टेनिटी मीन्स श्योर। श्योरली द टाइगर्स वर मूविंग वेरी स्मूथली विद ऑल करेज। करेज ही करेज था टाइगर्स में। दे डिडंट हैव एनी फियर, दे वर फियरलेस। इन द फर्स्ट स्टेंजा देर इज एन एलिनिएशन, देर इज अ डेस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर्स हु वर द फियरलेस। इन द सेकंड स्टेंजा वी सी अनदर फ्लेवर ऑफ द इमोशन। ओके, नाउ सेकंड स्टेंजा, सेकंड क्वार्टर, आंट जेनिफर्स फिंगर्स। ओके, अब ये आंट वर्ड पहले भी आया है, फिर आया है, यानी कि एनी ऑर्डिनरी लेडी, घर घर की महिला, एक आम महिला के लिए है आंट, ये सिंबल है। सिंबल मीन्स एनी कॉमन वुमन। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जो जेनिफर हैं उनकी फिंगर्स जो हैं फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब होता है एकदम से मूव करना, बिल्कुल। थ्रू हर वूल,
एकदम से फ्लटरिंग कर रही हैं, ट्रेम्बल कर रही हैं, कांप रही हैं, मूव कर रही हैं उंगलियां। थ्रू हर वुल, इसको पढ़ते हैं वूल नहीं वुल, थ्रू हर वुल अपनी ऊन बुन रहे हैं, यानी कि द थ्रेड इज नॉट ऑफ कॉटन नॉट ऑफ सिल्क बट इन द एम्ब्रॉयडरी शी इज यूजिंग द थ्रेड ऑफ वुल। वूलन थ्रेड है, ये भी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा थ्रेड से बुन रही थी वो, क्वेश्चन आ सकता है आपके, यानी तो आप कहेंगे साहब एमसीक्यूज बहुत आते हैं आपके 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में, तो आप कहेंगे साहब हमें सिल्क का थ्रेड था, कॉटन का थ्रेड था, या फिर जो है कुछ रेयांस था, या फिर जो है आपके ये वुल था, तो आपका राइट आंसर है वुल। उनकी जो फिंगर थी आंट जेनिफर की, वो कांपते हाथों से ऊन को बुन रही थी। फाइंड इवन द आइवरी नीडल ऑल्दो शी हैड आइवरी नीडल, हालांकि उनके पास में नीडल जो थी ना वो आइवरी की बनी हुई थी। आइवरी इज अगेन हियर मेटाफर, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें वो निडल डाल रही है, निडल नहीं जा रही है उसमें मैटिंग के अंदर एम्ब्रॉयडरी में। हो सकता है कि साहब निडल जो है बड़ी ब्लंट हो, या निडल जो है आपकी वो हो फ्लेक्सिबल हो, नहीं आइवरी की थी। आइवरी निडल आर वेरी स्टिफ इन नेचर, बहुत बिल्कुल कड़क होती हैं मेटल की तरह, एंड दे आर वेरी पिन वेरी 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 पॉइंटेड शार्प, शार्प एज होता है उसका, जैसे पेंसिल आप शार्पनर से करते हैं ना, वैसे बिल्कुल शार्प एज था उसका। फिर भी वो वूल नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि आंट जो थी, आंट जेनिफर, उनके हाथ कांप रहे थे, उनके हाथों में ताकत नहीं थी, क्योंकि वो घर में अंकल ने बहुत टॉर्चर किया था, और शी वॉज ए फियरफुल वुमन लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी वुमन। आंट जेनिफर बिल्कुल डिफरेंट है उनसे, किनसे? फियरलेस टाइगर से। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि टाइगर्स का डिस्क्रिप्शन है, वो फियरलेस हैं, और सेकंड स्टेंजा में जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कॉमन मैरिड वुमन। आंट जेनिफर मैरिड हैं, और मैरिज के वेट के अंदर वो दबी हुई हैं। अंकल ने इतना टॉर्चर किया है, जैसा कि आम महिलाओं को सब करते हैं, ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ हस्बैंड टॉर्चर करते हैं, और इस वजह से Aunt Jennifer doesn't have any confidence and she doesn't have any strength in her physical body. That's why वो फिंगर जो थी वो बिल्कुल जो है कांप रही थी, फ्लटरिंग कर रही थी, मूव कर रही थी थ्रू हर वूल ऊन में से। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, बिसाइड्स द फैक्ट कि वो आइवरी नीडल थी, तो एक तरफ तो जो है आइवरी नीडल में फ्लटरिंग नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ फ्लटरिंग हो रही है, तो ये जो है आप इस तरह के फिगर को बोलेंगे ये एंटीथेसिस है, ये भी है ना। आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और वो जो निडल थी उसको खींचना बड़ा मुश्किल है, वो घुसा तो थी निडल उसमें एम्ब्रॉयडरी मैटिंग के अंदर, उधर से पीछे से खींचना पड़ता है, पुल करके निकालना पड़ता है, फिर इधर खींचना पड़ता है। स्वेटर बुनते हैं आप जिस तरह से वुल से, उस तरह से, तो बड़ी मुश्किल से वो उसमें पेनिट्रेट हो पा रही थी मैटिंग में, और होने के बाद में पुल वापस खींचने का प्रोसेस भी बड़ा मुश्किल था। हालांकि निडल तो बहुत अच्छी थी, आइवरी निडल थी, आइवरी बोलते हैं हाथी दांत को, ओके, बहुत हार्ड होता है, बहुत शार्प होती है इसकी निडल। हार्ड टू पुल द मैसिव वेट, मैसिव होता है भारी भरकम भयंकर, मैसिव वेट, रीजन इज हियर, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। एंड व्हाट वाज द रीजन, कारण क्या था, ऐसा क्यों हो रहा था, निडल से क्यों नहीं बुन पा रही थी आंट जेनिफर, उनके हाथों में ताकत क्यों नहीं थी, फ्लटरिंग क्यों कर रही थी फिंगर्स? द रीजन इज दिस, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। क्यों? क्योंकि जो अंकल थे उनके हस्बैंड, मतलब ये एड्रिन रिच पोएट कह रही हैं कि आंटी के हस्बैंड, यानी कि आंटी हमारे लिए वो आंटी हैं, तो उनके हस्बैंड अंकल हुए हमारे लिए, तो अंकल तो फ्रॉम पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जेनिफर, आंट जेनिफर की कौन है ये हस्बैंड जिनको हम अंकल कह रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं हम यहाँ पे। ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, व्हाट काइंड ऑफ बैंड? वेडिंग, वेडिंग मतलब शादी का, बैंड, बैंड का मतलब यहां लिख सकते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाइंडिंग, बंधन, बोझ। क्यों? क्योंकि मैसिव, मैसिव मतलब ह्यूज, एक ह्यूज वेट, वेट मीन्स बर्डन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट? बर्डन। देयर वॉज अ ग्रेट बर्डन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, द मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी
is in multiple aspects, especially on women. When we have a comparison with their husbands, husbands are free of responsibility. They are having only one responsibility of earning. Otherwise, most of the responsibilities are always performed by the women, homemakers. Okay. तो वो जो शादी का बंधन था, बैंड मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू मे राइट डाउन द मीनिंग ऑफ बैंड. बैंड मीन्स वेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो देर वर so many wedding responsibilities on Aunt Jennifer's shoulder, like any ordinary woman in any home, whether inside the country or outside the country. तो वहाँ वेडिंग बैंड था. वेडिंग बैंड मीन्स बर्डन था. तो वेडिंग बैंड जो है यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत बात बड़ा चढ़ा के कही है वेडिंग बैंड में. तो वेडिंग बैंड में आप कह सकते हो जब बात को एग्जैजरेट करते हैं तो उससे भाई इतनी बुरी होती शादी वादी तो फिर मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है वही ख़त्म हो जाती. ऑल्दो आई एक्सेप्ट दिस दैट मैरिज इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन. 5.5 लाख अरब वर्ष पहले पृथ्वी का विकास हुआ है, अस्तित्व हुआ है. 3.5 अरब वर्ष पहले पहला यूनिसेल्युलर एनिमल आया है और इस शादी तो बहुत बाद में बनी है. ओके. तो आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है ये. और अगर आप पढ़ें कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉ पढ़ें तो लॉ में तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, स्पेशली इन मुस्लिम रिलीजन. मैरिज इज ए मैट्रिमोनियल कॉन्ट्रैक्ट. ओके. एक ये वो है करार, दो लोग सहमत होते हैं कॉमन इश्यूज़ के ऊपर और वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट इज़ मैरिज. और मैरिज में ऐसा भी नहीं है कि साहब सब तरफ ऐसा बिल्कुल कैटास्ट्रॉफी, बिल्कुल कलेश कलेश हो रहा है. तो बात को बहुत बड़ा चढ़ा के भी कह दी गई है यहाँ पे वेडिंग बैंड. तो इस वेडिंग बैंड में एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम कहेंगे हाइपरबोली. हाइपरबोली का मतलब 2 तरह के होते हैं हाइपरबोली. एक तो बड़ा चढ़ा के बात करें तो उसे बोलते हैं एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट, और एक बात को कम करके हल्का करके कहें तो उसे बोलते हैं अंडर स्टेटमेंट. तो हाइपरबोली में एग्जाजरेटेड स्पीच भी होती है और कई बार अंडर स्टेटमेंट भी. दोनों ही केस में आप बोलेंगे फिगर कौन सा है, हाइपरबोली. तो देयर इज हाइपरबोली. तो वेडिंग बैंड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यू मे राइट डाउन. हाइपरबोली, वेडिंग बैंड, हाइपरबोली. एग्जाजरेटेड स्पीच हो रही है यहां पे. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग. अब यहां पे देखो आप, एक और फिगर है, फिंगर का एफ देखें, फ्लटरिंग का एफ देखें. एफ कॉन्सोनेंट साउंड है, एफ भी कॉन्सोनेंट है. नज़दीक के दोनों वर्ड्स में स्टार्टिंग का साउंड कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है. एफ एफ स्टार्टिंग वर्ड है. इस फिगर को बोलते हैं एलिटरेशन. एलिटरेशन इज ए साउंड डिवाइस. इससे म्यूजिक बढ़ रहा है, पढ़ने में अच्छी लगती है लाइन. कैसे, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, फिंगर्स फ्लटरिंग. तो म्यूजिकलिटी आ रही है. तो एलिटरेशन आपका क्या है, एक साउंड डिवाइस है. कुछ फिगर ऑफ स्पीच में साउंड नहीं बढ़ता है, मीनिंग बढ़ता है. जैसे मैंने बताया ब्राइट टोपास, ये मीनिंग बढ़ रहा है तो इसे सेंस डिवाइस कहते हैं. तो फिगर ऑफ स्पीच 2 तरह के होते हैं, सेंस डिवाइस एंड साउंड डिवाइस. मेटाफर इज साउंड डिवाइस, सेंस डिवाइस. लिटॉट्स, मेटोनिमी, ये सब मीनिंग बढ़ाते हैं. तो ये क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये सब आपके जो है सेंस डिवाइस हैं. और एलिट्रेशन, राइम कह दें आप, या ओनोमेटोपिया, कंसोनेंस, एसोनेंस, ये सब क्या है, ये सब आपके साउंड डिवाइस हैं जो लाइन के अंदर म्यूजिक क्रिएट करते हैं. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल द मैसिव वेट. फाइंड इवन पाती है, द नीडल हार्ड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. जो वेडिंग का बैंड, वेडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी,
वो हैविली आके सेटल हो गई थी आंट जेनिफर के हैंड पर। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच देख ले, मैंने बताया सेंस डिवाइस। सेंस मीन्स मीनिंग। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच अप्लाई नहीं करेंगे, माफ़ कीजिएगा, ये कोई अननेसेसरी नहीं पढ़ा रहे हम, आपका मीनिंग ही पोएटिक मीनिंग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप। अगर फिगर नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ पे हैंड का मतलब हैंड ही पढ़ाएंगे। देख लीजिए, जो टीचर्स फिगर नहीं बताने इस लाइन में, सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो शादी की वेडिंग बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आके हैविली भारी तरीके से आंट जेनिफर के हाथों पे बैठ गई। ये मीनिंग निकला है आपका हैंड से, तो हाथों पे आके बैठ गई जिम्मेदारी। तो फिर जिम्मेदारी तो हाथ पे कम और दिमाग में ज़्यादा होती है, टेंशन। तो मीनिंग तो आपका निकला ही नहीं, क्योंकि आपने इस लाइन को लेक्सिकली एक्सप्लेन कर रहे हो आप वर्ड वाइज। ऐसे टीचिंग नहीं करनी होती है, इसको आप सीमासियोलॉजिकली यानी कि मीनिंग वाइज देखें, इसका कनोटेशन, इसका भावार्थ। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक फिगर। जब बॉडी का कोई एक पार्ट आप मेंशन करें पर आपका मतलब जो है उसका, आपका जो इंटेंशन है पूरी बॉडी से हो, जैसे मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, अभी आपको समझ में आएगा। हाउ मेनी हैंड्स इन दिस क्लास, इस क्लास में कितने हैंड्स हैं? तो ऐसा नहीं है कि एक एक आदमी दो दो हाथ खड़ा करेगा। वन हैंड, एक आदमी को एक ही हाथ खड़ा करना है। वन हैंड, स्पीकर क्या यूज कर रहा हूं मैं स्पीकर हूं। हाउ मेनी हैंड्स इन दिस क्लास, अब मान लीजिए आप 50 हैंड्स हैं, तो 50 हैंड्स मीन्स 50 पीपल, 50 स्टूडेंट्स। ओके, ऐसे मैं बोलूँगा कि पिकनिक पे चलना है यार। हाउ मच स्वीट शुड वी बाई पर हेड, पर हेड हम कितनी कितनी स्वीट्स खरीद लें पिकनिक पे जा रहे हैं तो। हमने इतनी तो पुड़ियाँ बनवा ली हैं, इतनी सब्जी बनवा ली है, इतना नमकीन ले लिया है, अब मिठाई कितनी लें यार अपन, अगर 100 लोग जा रहे हैं अगर पिकनिक पे तो। पर हेड से यहाँ पर सर से मतलब है पर पर्सन से, तो हेड पार्ट ऑफ बॉडी रिप्रेजेंटिंग द होल। हाउ मेनी हैंड्स इन दिस क्लास, हैंड पार्ट ऑफ बॉडी रिप्रेजेंटिंग द होल। या फिर मैं कहूँ मेनी ईयर्स आर लिसनिंग अस, हमें कई कान सुन रहे हैं। अरे भैया, ईयर पार्ट ऑफ बॉडी बट द मीनिंग इज नॉट ईयर, द मीनिंग इज मेनी पीपल आर लिसनिंग अस। Ear is representing, ear is part of body, पर here ear means not ear but ear means one person, तो ears हो जाएगा तो person का plural people, तो many people are listening us। The part of body, bone का मतलब bone नहीं, पूरा person। nail का मतलब nail नहीं, पूरा person। hand means hand नहीं, पूरा person। ओके, इस तरह से जब पार्ट ऑफ बॉडी रिप्रेजेंटिंग द होल, तो इस फिगर को बोलते हैं सिनेक्डकी। तो यहाँ पे भी है, क्या है देखो आप, सेकंड क्वार्टरन के लास्ट लाइन देखें आप, 8वीं लाइन, देयर इज 8th लाइन, सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। हैंड मीन्स आंट जेनिफर के हाथ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है या आंट जेनिफर पे पूरे पे आ गई? आंट जेनिफर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई शादी की, दैट इज द मीनिंग। उनके हाथ पे आके बैठ गई, स्पैरो ऐसे तो नहीं हुआ। इट मीन्स हैंड मीन्स नॉट हैंड बट द कंप्लीट आंट जेनिफर, यानी कि हाथ से मतलब यहाँ पे सिनेक्डकी फिगर अप्लाई करेंगे तो हैंड का मतलब हेड नहीं होगा, पूरी की पूरी आंट जेनिफर होगी। आंट जेनिफर के ऊपर आ गई सारी जिम्मेदारी, दैट इज द पोएटिक मीनिंग। ये कब निकला? जब हमने सिनेक्डकी अप्लाई किया किस वर्ड पे? हैंड पे। तो फिर हैंड का मीनिंग चेंज होके क्या हो गया? हैंड का मतलब हाथ, लेकिन मीनिंग यहाँ हाथ से नहीं है, मीनिंग यहाँ पे आंट जेनिफर से है। तो आप हैंड पे लिखें, आप हैंड मीन्स आंट जेनिफर। अब आप कहेंगे हैंड तो हाथ होता है, आंट जेनिफर, तो हम कहेंगे किस फिगर से? SYNECDOCHE, सिनेक्डकी। हैंड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिनेक्डकी। यस, द मीनिंग इज कंप्लीटेड हियर। हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, पूरी की पूरी जिम्मेदारी अंकल ने किसके ऊपर डाल दी? आंट जेनिफर पे। और मैसिव वेट, बहुत भारी जिम्मेदारी डाली है अंकल ने। व्हेन आंट इज डेड, तो देर इज कंट्रास्ट इन द सेकंड लाइन। इन द फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट क्वार्टरन, there is a description of fearless tigers who are happy, who are powerful and fearless.
And on the contrary, there is a different description related to Aunt Jennifer in the second quatrain, where aunt seems suppressed, not by her any physical illness or ailment. एलमेंट बोलते हैं छोटी बीमारी, इलनेस होती है बड़ी बीमारी. उनको कोई फिजिकल एलमेंट इलनेस नहीं है, बट द illness is only created by the male domineering society, because in male domineering society men do have chauvinistic attitude. In that particular sphere of men, women don't have even a place, they don't have even a slot, both in domestic life and in commercial life, okay, in working life. तो यहां पे सेकंड स्टेंजा में बिल्कुल कंट्रास्ट है. तो एक फिगर हो गया, पहले वाले में फियरलेस टाइगर का डिस्क्रिप्शन है और दूसरे में फियरफुल किसका, आंट जेनिफर का. तो ये जो है पोएट ने, एड्रिन रिच ने एक कंट्रास्ट क्रिएट किया है कि एक तरफ तो ऐसे हैं, एक्चुअली एड्रिन रिच ऐसा बनना चाहती थी टाइगर की तरह, फियरलेस ऐसी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन हो क्या गई, मैरिड लाइफ में फंस के रह गई, जहां बस पेन 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 और मेलनकली है, पैथोस, पैथेटिक है बिल्कुल वो. मेलनकली मैंने बताया आपको, एंडलेस सैडनेस. नाउ द थर्ड स्टेंजा, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई. जब आंट डेड हो जाएंगी तो उनके हाथ जो है ना, हैंड्स टेरिफाइड. अब हाथ टेरिफाइड है या पूरी आंटी जो है जेनिफर वो टेरिफाइड है, पूरी आंट. यहाँ भी हैंड का मतलब हैंड नहीं है, बल्कि आंट जेनिफर, यहाँ पे भी सिनेक डकी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मीनिंग आपका निकल के आए. व्हेन आंट इज डेड, ये कंडीशनल सेंटेंस है. फर्स्ट कंडीशन ओपन कंडीशन, फर्स्ट क्लॉज इज इन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ओके, एंड द सेकंड इज इन फ्यूचर सिंपल टेंस. व्हेन आंट, व्हेन मीन्स इफ आंट इज डेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन, इफ. वैन को इफ भी कह सकते हैं, प्रोवाइडेड कह सकते हैं, एडमिटेड कह सकते हैं, सपोज कह सकते हैं, सपोजिंग कह सकते हैं. देयर लॉट्स ऑफ वर्ड्स फॉर कंडीशनल वर्ड्स, ये कंडीशनल वर्ड्स कहलाते हैं. व्हेन, इफ, व्हेन मीन्स इफ आंट इज डेड, और ये इतनी फियरफुल, इतनी सप्रेस्ड, इतनी डरी हुई, इतनी भयभीत हैं अपने ही घर में, क्या हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई. लाई मीन्स पड़े रहेंगे. लाई के दो मीनिंग होते हैं, लाई मीन्स झूठ बोलना और लाई मीन्स पड़े रहना. या पड़े रहने के सेंस में झूठ का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे. उनके हाथ बिल्कुल डरे हुए हैं, हाथ डरे हुए हैं, या आंट जेनिफर डरी हुई हैं. आंट जेनिफर, तो हैंड्स मीन नॉट हैंड बट आंट जेनिफर. तो आंट जेनिफर इज फियरफुल, एंड व्हेन शी विल बी डेड, जब व्हेन शी इज डेड, जब वो डेड है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तब भी बाद में भी वो टेरिफाइड रहेंगी. इट मीन्स the poet has taken out the element of fear so much at that height when the poet says, Adrian Rich, that the agony and the tyranny of a married woman does not end with that particular woman's life, but the agony and tyranny continues even after the death of a woman. एक औरत जिंदगी भर कष्ट, मेलनकली एगोनी, पीड़ा, टायरनी में रहती है, और वो टायरनी, वो पीड़ा और वो दुख, वो सोरो उसकी मौत के साथ समाप्त नहीं होते हैं, मौत के बाद भी आगे जारी रहते हैं. ये बात फिर इन्होंने बड़ा चढ़ा के कही, फिर हम कमेंट करेंगे, लिटरली हाइपरबोली है यहाँ पे. व्हेन आंट इज डेड, जब आंट डेड हो जाएंगी, उनके हैंड्स फिर टेरिफाइड होंगे, यानी कि तब भी डरी हुई होंगी. आंटी जो हैं, आंट जेनिफर, उनकी मौत के बाद भी डरी हुई रहेगी. अगर आप उनकी डेड बॉडी देखेंगे मरने के बाद, तो फियर आपको तब भी नजर आएगा. दैट इज द एसेंस ऑफ दिस लाइन. स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील. ऑर्डियल नहीं पढ़ेंगे, द प्रोनाउंसिएशन इज ऑर्डील. ऑर्डील, ऑर्डील मीन्स बैड एक्सपीरियंस, सफरिंग, ओके. स्टिल रिंग्ड, रिंग बंदी होती है, रिंग का मतलब कवर्ड, आउट स्कर्टेड,
यानी कि मरने के बाद भी उनका जो बैड एक्सपीरियंस रहा है, सोरोफुल पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है, अंकल ने जो टॉर्चर किया है, सुबह से शाम तक घर में बर्तन मंजवाए हैं, झाड़ू लगवाया है, टॉर्चर करा है, वो कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया है, वो सब स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल। ऑर्डिल मीन्स बैड एक्सपीरियंस। उनके बैड एक्सपीरियंस वो कवर, रिंग्ड का मतलब होता है रिंग, देखो दैट इज द मीनिंग, रिंग्ड, ये बैड एक्सपीरियंस। दीज आर बैड एक्सपीरियंसेस दैट आंट जेनिफर हैड इन हर मैरिड लाइफ। वो बैड एक्सपीरियंसेस क्या हो रहे हैं, वो कवर्ड, रिंग्ड हो रहे हैं, आउट स्कर्टेड। So the meaning of the second line in the last quatrain is still ringed with the ordeal she was mastered by, is that even the bad experience of Aunt Jennifer would be outskirted, would be belted, would be covered even after her death. Still ringed with the ordeal she was mastered by, that she had, जो बैड एक्सपीरियंस उन्होंने रखा वो मौत के साथ समाप्त नहीं होंगे, बल्कि मौत के बाद भी वो उस डर से घिरी रहेगी, उस टॉर्चर से, टायरनी से, एगोनी से आंट जेनिफर घिरी रहेगी। सच ए कैटास्ट्रॉफी इज देयर इन द पर्सनैलिटी ऑफ आंट जेनिफर, एंड आंट जेनिफर इज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन। दिस पोएम हैज बीन कास्ट एंड काउच्ड in the third person. Okay, therefore this poem is not subjective, this poem is an objective one. So there is objectivity in this poem. It means it is the problem of most of the women in the domestic and married lives. The tigers in the panel, panel means mat, tapestry, जिस पर टाइगर्स बने हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी की हुई है. The tigers in the panel that she made, and she made tiger. Why did Aunt Jennifer make the tigers? Why did she embroider? क्यों की उन्होंने एम्ब्रॉयडरी टाइगर की? कोई स्पैरो की क्यों नहीं की, पैरट की क्यों नहीं की, कुक्कू बर्ड की क्यों नहीं की? बिकॉज शी वॉन्टेड टू लीड, शी वॉन्टेड टू लीड अ लाइफ लाइक टाइगर. टाइगर की, जिससे बिल्कुल फियरलेस बनने की इनकी ख्वाहिश थी आंट जेनिफर की, जो सप्रेस हो गई इस मेल डोमिनियरिंग सोसाइटी के अंदर. मेल डोमिनेटिंग नहीं बोलना है, मैंने फिर बोला आपको. मेल डोमिनेटिंग तो पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है आपकी मेल डोमिनियरिंग. जब मेल सुपीरियर नहीं है फिर भी वो डोमिनेट करते हैं, तो टर्म इज मेल डोमिनियरिंग सोसाइटी के अंदर दे आर हैविंग मेल शोविनिज्म. कौन? मेल. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और वो टाइगर जो उन्होंने बनाए, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो वैसे ही चलते रहेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ. इधर तो आंट जेनिफर डाई हो जाएंगी. व्हेन आंट जेनिफर डाइज, हर फेस एंड हर डेड बॉडी इवन दो वुड रिफ्लेक्ट द फियर, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, द टाइगर्स इन द एम्ब्रॉयडरी वैसे ही प्रांसिंग करेंगे. कैसे? प्राउड एंड अनअफ्रेड. टाइगर्स कल भी फियरलेस थे, आज भी फियरलेस हैं, और आंट जेनिफर के बाद भी फियरलेस रहेंगे एम्ब्रॉयडरी के अंदर. थैंक्स टू दैट आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, थैंक्स टू दैट आर्ट ऑफ पेंटिंग, थैंक्स टू दैट आर्ट ऑफ ब्रोकेड, वेयर टाइगर्स आर फियरलेस फॉर एवर, एंड ऑन द contrary, whereas Aunt Jennifer, who is representing a common lady, whether it is scholarly lady or it is unscholarly lady, every lady, most of the ladies in domestic life are suppressed by their own husbands and by their own family in the domestic and married life. Will go on prancing, प्राउड, ऐसे प्राउड से चलेंगे टाइगर. अनअफ्रेड यानी कि फियरलेस, ऐसे ही चलते रहेंगे ये टाइगर. और आंट जेनिफर जो है वो मर जाएंगी, फिर भी वो फियरफुल दिखाई देंगी, उनकी कॉप्स, उनकी डेड बॉडी. सो हियर इज अ कंट्रास्ट
सो इनफैक्ट दे आर बोथ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। यहाँ पे कंपैरिजन भी है और कंट्रास्ट भी है और आयरनी भी है इसके अंदर। एक तरफ तो जो है आंट इस तरह का एटीट्यूड है और दूसरी तरफ जो है आंट जेनिफर जो है वो कुछ ही नहीं कर पा रही। आयरनी का तो सेंटेंस ही देखें आप, फेमस अगर आप पढ़ेंगे कॉलेरिज को तो वाटर 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 एवरीवेयर एंड नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, पानी पानी पानी, सब तरफ पानी था और पीने के लिए एक बूंद नहीं थी। आयरनी यहाँ पर इस तरह से है कि इसके अंदर जो है हालांकि सब तरफ जो है एवरीथिंग इज देयर, ओके, एवरी फैसिलिटी इज इन द होम, बट even though the housewife homemaker is puzzled and tortured and suppressed, ऐसा नहीं है that she was Aunt Jennifer was deprived of facilities. Okay, she was not deprived of facilities. In fact, even though she didn't have the peace of mind because of the burden of the wedding responsibility. So I think I discussed all the references and I discussed most of the figure of speech. Figure of speech ऐसा नहीं है कि डिस्कस करना, फिगर ऑफ स्पीच से ही राइट मीनिंग निकल के आता है आपका। सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द करेक्ट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन इन अ पोम, आई थिंक एवरी टीचर मस्ट अप्लाई फिगर्स, देन ओनली यू कैन ड्रॉ द पोएटिक एंड द proper semasiology of that particular line and of that particular poem as a whole. So hopefully you enjoyed my teaching here, and I think we may prepare the important questions in PDF there. तो अभी आपको फिर वही लास्ट में, अगर आपको कुछ थोड़ा सा अच्छा नॉलेज मिला है यहाँ पे, आपको थोड़ा लगा है कंटेंट बहुत अच्छा है, सब बातें हैं, तो फिर प्लीज़ आप एक रिक्वेस्ट है हमारी, आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है परवेज़ इंग्लिश वाला कोटा। इसके नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, पोर्ट्रेट आएगा मेरा, वहाँ पे आप टैप करेंगे, सारे वीडियोस निकल के आ जाएंगे। तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज़, और आप इसको लाइक भी कर लें। तो एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल बजा दें ताकि आपके नोटिफिकेशन आ जाए। और फिर मैं सारी पोएम्स आपके लिए तैयार करने वाला हूँ 12th में, और फिर 10th के लिए भी, फिर BA MA, फिर नेट, SSC CGL वोकेबुलरी सेशन भी होंगे आपके। तो आई थिंक दैट्स अनफ फॉर टुडे एंड वी कैन मीट टुमारो। टिल देन थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम, ओके, सी यू।